And today, as Madam said, that it is the first day of ICT. So I say thanks to Ma'am for giving me an opportunity to have sharing my thoughts with the students. And I'm just sharing my PPT with all. And my today's talk will be based on, Ma'am, sharing नहीं आ रहा है? Ma'am, yes, it is there. नहीं मैम, प्लीज इसको मेरे को करिए, प्रेजेंटर बनाइए मैम, Yes, शायद वही ma'am. हो रहा है. Side is on your side, presenters option. Just a minute, नो I'll बट यू कांट I'll शेयर change. कंटेंट अनलेस द होस्ट और होस्ट एक टू द मिनट मैम, मैं फिर प्रेजेंटर, से ऐसा करती होगा. हूँ. Yes, yes. So by the time Madam give me a sharing option, I just have want to give you a brief about my today's presentation. Basically, I'm going to deal with you in my today's presentation is how to uh, create ICT mediated learning environment by using different options. And now I Ma'am, can yes. see that now. Yes, yes. Oh yes, it is. It is. Yeah, हो गया ma'am. Just see that आ रहा है इसे. पाचवा माझा It's खाली. random ma'am. Yes. Yes, ma'am, it is visible. Okay, okay, okay. Thank you ma'am. Thank you. So my today's talk will be based on how we can integrate information and communication technology in teaching learning process. Usually we have thinking that use of ICT is a little bit hectic or little bit troublesome for the teachers because we all are trained in a offline mode. But I'll give you here some few tips through which you can easily incorporate this information and communication technological tools in your day-to-day teaching also, and you can develop a good quality software by using these small tips, which is very helpful for developing a good quality teaching learning material based on ICT. So let us begin with that, how we can apply this technology in case of education. So as I always believe that let us understand what this ICT means. तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है. मैडम मिक्स करने दो ना लैंग्वेज. Ma'am. Yes, ma'am, mixed language, Hindi, Okay, English. okay. Yeah, please. So let us understand that कि what is information and communication technology. तो ये बेसिकली होता क्या है, बहुत बार हम ये बोलते हैं कि वी आर यूजिंग आईसीटी, यूज आईसीटी, बट व्हाट डज इट मीन. तो बहुत सिंपल सा आईसीटी का मीनिंग होता है कि जो भी टेक्नोलॉजीज विच यू आर यूजिंग फॉर कैप्चरिंग, इंटरप्रेटिंग, स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, like we are using our desktop, we are using our computers, we are, in fact, when we use MP3 player, when we use any kind of tablet, any kind of digital camera, any kind of memory card, data projector, video conferencing tool, anything, any device, electronic device, include radio, that tape recorder, all will come under the category of information and communication technology. So when we say that when we are using email also, so that email is also a sort of communication and which is based on electronic communication. So when you use any sort of internet connectivity or non-internet connected electronic devices in teaching learning process, we can say that information and use of ICT in information in teaching learning process, or we can say use of ICT in education. So my today's talk will be based on what are the different ways through which we can include this information and communication technology in our day-to-day life. So why then a question always comes, we are teachers for so many years. So what is the need of this ICT, so integration of this ICT tool or information and communication technology in our teaching learning status? So if you look at the educational status of across the world, you will find that it is a research data that 72 million children do not have access to education. In the world, they are out of formal education. What does it mean? It means that कि अभी तक 72 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको की पूरी दुनिया में, जिनके पास में शिक्षा की, उनके फॉर्मल एजुकेशन उन तक नहीं पहुंच पाई है. If I talk about the Indian status, you will find that in Indian classroom, 8 million children are out of classroom or school in India.
दो वी हैव सर्व शिक्षा अभियान, और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 14 तक 0 to 14 ईयर्स की एजुकेशन कंपलसरी हुई है, फिर भी 8 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन तक हमारे स्कूल्स उन तक नहीं पहुंच पाए हैं. दे आर आउट ऑफ अवर स्कूल्स और अवर classroom. So this is one of the very, very important aspect which we have as a teacher we have to consider, since it is a refresher course and we all are belongs to teaching community. Then always there is a question that whether we can reach to this unreached people. Yes, of course we can reach to this unreached people. इन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं यदि हम आईसीटी टूल्स के छोटे छोटे टूल्स को यूज करें, तो हम इजीली इन अनरिच्ड पीपल तक पहुंच सकते हैं. So if you look at the present generation classroom, we have lot of disparity. You can see the classrooms in it under tree. You can see the classrooms under the baby places. Like all these situations are very common in our Indian classroom situation, and we have this all disparities. So how to overcome all these disparities? Of course, the solution is with the information use of ICT tools. So what is the need? Very simple aspect of this need of ICT is because there is a globalization. We all witnessing that 21वीं सदी में बहुत तेजी से इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं. हमारी जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी हो गई है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, एस्केलेटिंग डिमांड फॉर एजुकेशन हो गई है. तो ये सब चीजों को देखते हुए यदि हम आईसीटी का यूज करते हैं तो वी कैन प्रोवाइड इफेक्टिव लर्निंग for all, anytime, anywhere. This is one of the very good advantage of use of ICT in teaching learning process. I congratulate you all that you are joining this course where you will learn lot of things, that you will learn lot of techniques through which you can include these ICT tools in our day-to-day teaching also. So what is then another question? If we have all witnessed the COVID-19 lockdown situation, and since March 2020 we were not having any offline classes. So we of course all the teachers were relying on this ICT tools only. हम टीचर्स के पास जैसा भी सुविधा थी विद इन एक महीने के अंदर स्कूल टीचर्स भी और हायर एजुकेशन के टीचर्स भी whatever devices, whatever tools they were having, through that they have shifted to online mode. तो हमने अपने बच्चों की शिक्षा को बंद नहीं होने दिया, और उसके पीछे हमें जो सपोर्ट मिला वो हमारे आईसीटी का ही सपोर्ट था. Then if you see this is one of the reports from March 31st Times of India, that in during that period, majority of parents, because of fear of COVID, they opposes the offline classes. Then what was the solution? That was the solution was with us is the online classes. So a question always, as a teacher, a question always comes in my mind that though we are we were trained to teach in offline mode, then how we converted into online mode? We all witnessed that we ourselves converted into online mode, but whether our online classes are really helpful, whether our students are learning with these classes, whether we find satisfaction in delivering the lecture through online mode, all these questions need to requires rethinking and requires to learn a very important technique to provide quality education to learners. तो अपने शिक्षक एज ए शिक्षक हमारे मन में हमेशा एक फीलिंग होती है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो बहुत क्वालिटी तरीके से अपने स्टूडेंट तक पहुंचाऊं. तो ये सारी इस सब चीजों को देखते हुए हमें then another need is that if you look at the today's generation, जब हम पैदा हुए थे तब rarely we were having telephone at our home. बट आज की जनरेशन जो है उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में लैपटॉप है, एंड दे आर वेरी मच यूज टू all this. So I am not exaggerating if I say that the kindergarten kids are thinking that they should have Wi-Fi everywhere. So this is the condition of today's next generation. हम सभी लोग अपने घरों में भी ये चीज विटनेस कर रहे हैं कि हम 3-4 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल, या छोटा सा बच्चा बैठना शुरू होता है और उसके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप होता है. तो वो इस टेक्नोलॉजी के टूल के एनवायरमेंट में भी डेवलप हुए हैं, ग्रोन अप हो रहे हैं. तो ऑफकोर्स उनकी नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वो बहुत हायर होगा, और हम टीचर्स को उसके साथ कॉपअप करने की जरूरत होगी, क्योंकि आगे पीछे आपकी क्लास में यही बच्चे बैठे हुए हैं. एंड स्पेशली दैट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जितने भी बच्चे आ जा रहे हैं, दे आर द नेट से भी बच्चे हैं, उनको इनको जो आईसीटी टूल्स की बहुत ज्यादा जानकारी है, एंड दे आर यूजिंग इन देयर social life, in their personal life very frequently these tools. So of course we have to develop these, we have to use these tools in our teaching learning process also. That is very important. So
My today's talk will be how we can integrate this ICT for learning 21st century skills. इन चीजों को सीखने के लिए हमें किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं. So by using this ICT, we can unreach being reached by ICT. ICT can be used to open a door for underserved groups of education. We can provide learning for all, anytime, anywhere. This is one of the very important aspects. Then how we can integrate this ICT in teaching learning courses. So to be able to use ICT in the courses effectively, we should be aware of its potential. तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है कि हमारे पास में हमें ये पता होना चाहिए कि हमको आईसीटी के कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से एवेन्यूज हमारे सामने अवेलेबल हैं. तो एज ए टीचर यदि मुझे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके व्हाट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल. So we can able to select tools and methods which are appropriate with the needs of the student. हमारे हर स्टूडेंट की नीड अलग होती है, हर कोर्स की नीड अलग होती है. तो यदि हमको डिफरेंट टूल्स के बारे में पता होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज एन अप्रोप्रिएट tool also. Then we can design our own teaching methods effectively. This is also one of the way. Then we can develop new teaching strategies also. हम develop कर सकते हैं. We will should be able to know and apply classroom management tools in order to cope up with the problems encountered in technology aided learning environment. जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि कोविड-19 के समय हम सारे लोगों ने, जैसे हम सभी ने एक न एक तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को एक्सपीरियंस किया है एंड वी हैव कंडक्टेड दीज ऑनलाइन क्लासेस. तो उन ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी और ग्रेजुअली हम जो है अपने खुद की मिस्टेक से धीरे धीरे सीखते गए और लिटिल बिट अब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स थोड़ा से प्रोफिशिएंट हुए हैं. स्टिल देयर इज लॉट ऑफ गैप और हमें बहुत सारी चीजों को सीखने की जरूरत है. एंड आई होप दैट दिस कोर्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स. So there is a need, how then always question comes that कि हम कैसे इफेक्टिव तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट करें. तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी के कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम अपने, ऐसा नहीं है कि सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास में अवेलेबल है वो सब हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या हमारे डे टू डे टीचिंग में इंक्लूड करें, लेकिन हमको सही टेक्नोलॉजी जिसके साथ में हम वेलवर्स हो सके, जिस चीज को हम अच्छे से अप्लाई कर सके, यदि हमको उसके बारे में पता होगा तो हम इफेक्टिव तरीके से उसको यूज कर पाएंगे. So investigating teachers' belief on ICT as well as their current level of ICT use have particularly importance in ICT integration studies. जितनी भी अभी तक ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन स्टडीज हुई है, उसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम टीचर्स का क्या सोचते हैं और उनका कितना ICT यूज का लेवल है, हम किस लेवल पर खड़े हैं. क्योंकि आईसीटी का एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आजकल मॉडर्न जमाने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है सारे टीचर्स से कि वो सारा सीख जाएं और एकदम से यूज करने लगे. बट ये जरूर एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से एवेन्यूज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आप इस टेक्नोलॉजी को वेरी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, किसमें आप अपनी प्रोफिशिएंसी को डेवलप कर सकते हैं, आपके कंटेंट के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी सूट कर रही है. जब तक हमारे सामने ये सब चीजें नहीं ओपन होंगी तब तक हम इफेक्टिवली आईसीटी टूल्स को अपनी टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. देन सर्टेन हॉलमार्क हैं कि ये चीज हर टीचर को समझना चाहिए कि क्लासरूम्स आर नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ लर्निंग स्पेस. ये तो सभी को पता है कि आज के बच्चे केवल हमारी क्लासरूम से नहीं सीखते हैं. They are learning by their own efforts. Because social interaction is a growing part of learning. Team and collaborative learning is encouraged. Nowadays, people are learning togetherly. वे collaboration के साथ सीख रहे हैं. Then the most important aspect is technology is natural in the lives of the students. They are the digital natives. आज का जो यंगर जनरेशन है वो डिजिटल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है और उनको शुरू से राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे आर एक्सपोज टू डिजिटल टूल्स. तो उनका जो है, उनका डिजिटल प्रोफिशिएंसी है वो हमसे बहुत ज्यादा है. सो आई ऑलवेज बिलीव दे आर द डिजिटल नेटिव बोर्न इन डिजिटल एनवायरनमेंट वेयर एज वी टीचर्स
When we were born, rarely we had a more advanced technological tools. छोटे मोटे टूल्स थे घरों में, शायद टीवी था, और मैं जिस समय पैदा हुई थी उस समय तो मुझे लगता है कि 20 साल तक तो घरों में टीवी भी नहीं थे। तो ये जो डिजिटल, तो हमारी पोजीशन कैसी है, वी आर द डिजिटल इमिग्रेंट। कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, टेलीविजन और टेलीफोन भी हमारे घरों में नहीं थे। तो हम, हमारी कंडीशन कैसी है, जो हम सीनियर्स हैं, हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट थे। धीरे धीरे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। ये एक बहुत सीधा सा बात है कि यदि इफ यू एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि यदि हमारे घर में हम कोई नया मोबाइल लाते हैं या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हैं, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उस नए मोबाइल के सारे फीचर्स को हमारा 12 साल का, 15 साल का बच्चा जितनी आसानी से हैंडल कर पाता है, हम एज ए मेच्योर पर्सन हम उसको नहीं हैंडल कर पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा फोन आउटडेटेड, मोबाइल फोन आउटडेटेड हो जाता है, तो भी हम उसके सारे फीचर्स को नहीं सीख पाते हैं। द वेरी सिंपल रीजन फॉर दैट कि वी आर द इमिग्रेंट्स, हम धीरे धीरे उस चीज को सीख रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे, वो एक्सपीरियंसेस, जो न्यूरल कनेक्शन थे वो वीक थे एज कम्पेयर टू द यंगर जनरेशन। क्योंकि चाइल्डहुड एज में आप जितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करेंगे, उतने आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस एडवांस होते हैं और आप उतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं। जबकि जिन लोगों के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा टेक्नो से भी नहीं रहे, उनको डिफिकल्टी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एवरी टीचर हैज टू अंडरस्टैंड, कि हम कितना भी आईसीटी का यूज करें, हमारी प्रोफिशिएंसी लेवल की सर्टेन लिमिटेशंस तो रहेंगी ही। और उन लिमिटेशंस को ही ध्यान में रखते हुए हमको अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और उसके साथ साथ हमको जो बेस्ट हो उसको हमको और करना है। देन तो आजकल की जो कंडीशन में मैं आपसे कहूँ कि आज के स्टूडेंट दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन कंटेंट रादर देन जस्ट कंज्यूमिंग इट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही हमारे स्टूडेंट उसको सीधा का सीधा मदद कर ले, वो आज की जनरेशन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी देना होगी जिससे बच्चे अपने कंटेंट को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें, बिकॉज स्टूडेंट्स आर एक्टिव ऑथर्स ऑफ देयर कंटेंट एंड इनोवेशन। वो अपने खुद के इनोवेटिव टूल्स को डेवलप करते हैं और वो अपने तरीके से सीखते हैं। ये हर टीचर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यदि इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू विल फाइंड दैट कि सोशल इंटरेक्शन इज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ लर्निंग, टीम एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इज इंक्रीजिंग। दूसरे से सीख रहे हैं, उनके बीच में आपस में कोलैबोरेशन भी हो रहा है एंड दे आर लर्निंग। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि टेक्नोलॉजी इज नेचुरल इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये कोई एग्जीबिशन नहीं है छोटे छोटे बच्चों के साथ में, वो दे आर एक्सपोज टू मोबाइल। कई बार आपने एक छोटे छोटे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखे होंगे जिसमें पाया गया होगा कि मदर इज कंप्लेन कि मेरा बच्चे के हाथ में जब तक मोबाइल न दो तब तक वो खाना ही नहीं खाता। तो ये जो है, ये स्थिति सभी के घरों में है, इंडियन घरों में भी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इज नेचुरल इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, दे आर द डिजिटल नेटिव, बट वी टीचर्स आर द डिजिटल इमिग्रेंट। Then a new millennium has extremely rapid increase in internet, mobile phone, and computer use. Young people learn differently. Learning becomes more effective and joyful experiences with the use of sophisticated technologies and application available on smartphone, tablets, and personal computers. हम सभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम किताबों को पढ़ने की तुलना में हम जनरली ये बच्चे पसंद करते हैं, और हम भी एज ए एडल्ट भी हम पसंद कर रहे हैं कि हम अपने कोई भी चीज को अपने स्मार्टफोन पे, टेबलेट या पर्सनल कंप्यूटर पे देख करके सीख लें। तो आपको एज ए टीचर वी हैव टू कन्वर्ट अवरसेल्फ टुवर्ड्स दिस यूज ऑफ आईसीटी टूल्स। Then it is important to know how people acquire ICT skills and how those ICT skills are used to learn new ones and expand the scope of their knowledge. तो हम किस तरीके से इस आईसीटी स्किल्स को यूज करें, हम अपने जो सीखने की प्रक्रिया है उसको हम कैसे एक्सपांड करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यंग पीपल हैं वो कैसे आईसीटी स्किल को एक्वायर कर रहे हैं और हाउ दे आर यूजिंग दिस आईसीटी स्किल to learn the knowledge and expand their, to learn the new concepts and expand their knowledge. As a teacher हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम effective use of information and communication technology का कर पाएंगे। Then every day new technology are changing how learning and teaching is done, creating new opportunities and teachers for challenges for teachers and learners alike। ये बहुत रियल बात है कि हर रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज हम एक टाइप के टूल में प्रोफिशिएंट होते हैं, दूसरे दिन उससे इसका एडवांस वर्जन आ जाता है।
I'm telling you कि I'm using this system WebEx. Our university is using WebEx from 2020 onwards, and every often हर 15 दिन में उसमें कोई ना कोई एक नया फीचर ऐड हो रहा है और we are getting difficulty to learn to cope up with this new feature. तो ये चैलेंज तो हर टीचर के सामने हमेशा रहता है. Then in such situation हमको क्या करना होगा? As a teacher we can take the role of expert or facilitator of learning. तो यहाँ पर हम अपने आप से ही टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप जो भी आप आईसीटी टूल सभी सब सीखेंगे तो ऑलवेज टेक द रोल ऑफ एक्सपर्ट एंड फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग और स्टूडेंट कैन ओन द लर्निंग प्रोसेस एंड एक्वायर नॉलेज एट देयर ओन पेस. स्टूडेंट अपने खुद की पेस से नॉलेज एक्वायर करें. तो दिस इज द न्यू वे ऑफ इंटरेक्टिंग इन द लर्निंग एनवायरमेंट. ऑल्सो इमर्जिंग एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें हमारा रोल क्या होगा, हम एक एक्सपर्ट या फैसिलिटेटर के रोल पर होना चाहिए हमें, और स्टूडेंट खुद अपने नॉलेज को एक्वायर कर सके. ऐसे तरीके के आईसीटी टूल्स को हमको डेवलप करना पड़ेगा. देन इफ यू लुक एट द हाउ वी कैन यूज आईसीटी, इसके अंदर 3 मेजर की ट्रेंड्स हैं, और वो 3 मेजर की ट्रेंड्स कौन कौन से हैं जिसमें हम आईसीटी टूल को अपने डे टू डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं. वो है, एक है ब्लेंडेड लर्निंग, दूसरा जो ट्रेंड है वो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और तीसरा आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग का. तो ये तीनों जो ट्रेंड है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस की व्हाट दिस की ट्रेंड्स आर. वन इज ब्लेंडेड लर्निंग, सेकंड वन इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, एंड थर्ड वन इज कोलैबोरेटिव लर्निंग. ये तीनों ट्रेंड को साथ से हम का यूज करते हुए अलग अलग तरीके से. तो व्हाट इज दिस ब्लेंडेड लर्निंग? अब यदि मैं इसको डिटेल में आपसे डिस्कस करूं तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है इट इज द पेडागोजिकल इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल एंड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन. ये वो पेडागोजी है, ये वो टीचिंग टेक्निक है जिसमें हम कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टूल का भी यूज करेंगे और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन भी यूज करेंगे. तो यदि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हम बात करें तो इसमें कैसे कैसे क्लासरूम आ सकते हैं. आप सभी ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा फ्लिप्ड क्लासरूम का. तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है. देन मिक्स मोड, हाइब्रिड, टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड वेव इनहांस्ड इंस्ट्रक्शन. ये तीनों तरीके के जो इंस्ट्रक्शन है ये सब किसमें आते हैं? ब्लेंडेड लर्निंग में आते हैं, जिसमें नॉट ओनली केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके साथ साथ फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन का भी इंक्लूड किया जाना जरूरी होता है. तो जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है. I just want to explain you what is this flipped classroom जो कि blended learning का ट्रेंड में आता है. तो बेसिकली फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है, यूजुअली एज ए टीचर हम क्या कर रहे थे, हम जनरली क्या करते हैं, अपने कंटेंट को स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्लासरूम सिचुएशन में फेस टू फेस पढ़ाते हैं. उसके बाद हम उनको कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ रिसोर्स मटेरियल के बारे में बताते हैं और उनको बोलते हैं घर में जाकर के स्टडी करिए और ये होमवर्क करके हमारे सामने लाइए. ये दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम रोज करते हैं. हम अपने स्टूडेंट से फेस टू फेस कोई कंटेंट के साथ में उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं. पढ़ाने के बाद हम उनके साथ में अदर रिसोर्सेज शेयर करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप खुद घर में पढ़ें. अब इसी ट्रेंड को यदि हम रिवर्ट कर दें तो क्या होगा, हम एक काम करें कि हम अपना जो भी कंटेंट हमको पढ़ाना है, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हम बच्चों को एडवांस में ही खुद दे दें कि आप खुद आपको इसको घर में पढ़ना है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, उसके बाद उनको पढ़ने के लिए दे रहे थे. अब हमें क्या करना है, हमें सारे कंटेंट को बच्चों के साथ शेयर कर देना है और उनको बोलना है कि आप इसको यू जस्ट स्टडी एट होम एंड लर्न. when you meet with them at face to face, जब फिर पढ़ने के बाद जब बच्चों से आप फेस टू फेस मिलेंगे तब आप क्या करेंगे, तब आपकी क्लासरूम में टीचिंग नहीं होगा, आप केवल डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन मतलब बच्चों ने ऑलरेडी उस कंटेंट को एक्सप्लोर किया है, वो अपनी डिफिकल्टीज अपनी क्लासरूम में शेयर करेंगे. वो आप, तो यहाँ आपका रोल क्या होगा, आप केवल फैसिलिटेटर के रोल में होंगे और बाकी बच्चे खुद पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद जो उनको डिफिकल्टी आई, जो एडवांस नॉलेज उनको गेन करना है, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं, वो जो क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ों से उनकी नॉलेज को वो इन्हांस करेंगे. बेसिक नॉलेज उनके पास नहीं होगा. तो ये जो तीनों की ट्रेंड में ब्लेंडेड लर्निंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. और अभी अभी आपने ये कोविड-19 के समय महसूस किया होगा कि हम क्या करें, जो हम अपना लर्निंग मटेरियल को पहले से शेयर कर दें और जब हम एक्चुअल क्लासरूम में मिले तब हम क्या करें, हम केवल डिस्कशन करें, तो आपको हमारी नॉलेज मोर स्ट्रेंथन होती है. तो दिस इज बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज विद द फेस टू फेस टीचिंग. देन ये जो ब्लेंडेड लर्निंग आईसीटी क्लासरूम है,
इट इज रिलाइंग ऑन कि इंस्ट्रक्टर टीचर डेवलप वीडियोज लर्निंग मटेरियल, आप अपना वीडियो लर्निंग मटेरियल डेवलप कर लें, देन उस वीडियो और लर्निंग मटेरियल को स्टूडेंट क्या करें, दे एक्सेस लर्निंग मटेरियल online, and when you meet in the physical classroom, the space for discussion and face-to-face interaction हो. So one of the example is virtual classroom. ये जो आपका blended learning है, ये learning management system पर rely करता है. So basically apps and web tools, supportive elements and facilitate online interaction. ये सब जो है blended learning का ही concept है. Then जो लर्निंग एक क्वेश्चन एक मैंने एक वर्ड यूज किया था कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. So the blended learning process relies on digital environment called LMS, learning management system हम उसको बोलते हैं. इसके थ्रू हम we can create a virtual classroom for the students with lesson plans, discussion forum, grades, quizzes, tests, class calendar and other resources. तो अभी आप कुछ दिनों के इससे आपके रिफ्रेशर कोर्स में ही आप गूगल क्लासरूम के बारे में पढ़ोगे. अब यू विल लर्न दैट कि किस तरीके से ऑनलाइन क्विज़ेस डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से क्लासेस डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को डिजिटाइज कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. तो जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो इन चीज़ों को आपको यूज़ कैसे करवाना, इफेक्टिव तरीके से कैसे करवाना, तो इसके लिए हमको सीधी सी बात है कि हमको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करना आना चाहिए. तो इस एलएमएस के थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम को क्रिएट कर सकते हैं. देन बाय हैविंग टू द एक्सेस टू द क्लास मटेरियल, स्टूडेंट कैन लर्न एंड कॉन्सेप्ट एट देयर ओन पेस, वो अपने हिसाब से पढ़ लें. और जब हमारा फेस टू फेस टाइम होगा तब हम इंस्ट्रक्टर के साथ या टीचर के साथ वो डिस्कस कर लें, जिससे उनके नॉलेज को ज़्यादा डीपन होगा और दे कैन एक्सप्लोर अदर इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंटेंट को सिलेक्ट करके लेके आते हैं और उतना ही पढ़ा पाते हैं, तब तक हमारी क्लास टाइम खत्म हो जाता है. बट यदि हम इस तरीके की ब्लेंडेड लर्निंग में स्पेशली फ्लिपिंग द क्लासरूम को अडॉप्ट करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, जो भी मटेरियल जो भी वीडियो जिसको हमको उनको पढ़ाना है वो हम पहले से उनके साथ शेयर कर देंगे, बच्चे खुद पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद क्लासरूम क्या होगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिस्कशन फोरम. तो उससे हम एडवांस लेवल की टीचिंग भी कर पाएंगे. So this learning management system, this virtual classroom on LMS integrate web to tools, certain applications, बहुत सारी applications online available हैं जिनको मैं भी यूज करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ. You can create your presentation using prezi.com. You can create your presentation using slideshare.net. You can create a video on YouTube. As just now Preeti madam has told you that she has already created a video and which we shared with you, so you can explore by your own way. Then Facebook is another medium through which we can share content. Evernote.com is also Dropbox.com. Blogs is also one of the source. Blogspot.com or EduBlogs, these are the freely available sites हैं. और ये जो साइट्स हैं ये टैबलेट पर, मोबाइल फोन पर, पर्सनल कंप्यूटर पर सब पर एक्सेस की जा सकती हैं. तो ये बेसिकली एलएमएस क्या है, दिस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ उस क्रिएटेड कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. और जब भी हम अभी जैसे हम लोग किस तरह से मीट कर रहे हैं, अभी भी ये हम ऑन स्क्रीन मीटिंग कर रहे हैं, जो कि हम सिंक्रोनाइज लर्निंग वर्चुअल क्लासरूम का मोड है, जिसमें मैं आपको रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे डिस्कस कर रही हूँ. तो यही कंडीशन, यदि हम पहले से लर्निंग मटेरियल को स्टूडेंट के साथ शेयर कर लें और जब भी दे मीट तो हमारा जो लर्निंग है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है. तो ये जो है ब्लेंडेड लर्निंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर वी कैन डिसेमिनेट नॉलेज इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर एट द स्टूडेंट्स ओन पेस. तो ये एक ब्लेंडेड लर्निंग वो कंटेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. और बेसिकली हम जो ब्लेंडेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात मैं आपसे कर रही थी, तो एलएमएस इज through LMS we can share content, we can manage the class, we can have communication and assessment also. So certain like blog, wiki, podcasting, clickers, e-portfolio. What is the advantage? It builds community building. It is a service learning. Student can collaborate with each other with the teachers. So collaboration is also there. We can give group projects also, and it develops reflection, high order thinking also developed using this LMS learning management system by the key trend is blended learning. Now, one of the example which I would like to share, as I told you that I am in the field of technology for so many years. So in the year 2000, I think it is in the year 2008 to 12, इस बीच में हमने तो उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी.
तो उस समय इस तरीके के जो अभी आपके पास वेबएक्स की या आपके पास गूगल की ये सारी सुविधाएं उस समय नहीं थी। तो उस समय हम लोगों ने मैंने और मेरे एक पीएचडी स्कॉलर ने एक वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किया था। वो जो वर्चुअल क्लासरूम था ये एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के थ्रू हमने बनवाया था, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमें थोड़ी थोड़ी आती थी, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर से ज़्यादा अच्छा उसने हमको बनाया था। और इसमें दोनों मोड थे, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। So let me explain what this virtual classroom synchronous and asynchronous mode क्या होता है। तो synchronous mode का मतलब होता है कि जब अभी जैसे मैं आपसे रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग, जब मैं अपना लेक्चर शुरू करूंगी तभी स्टूडेंट उसके साथ जुड़ेंगे और हम एक दूसरे के साथ थ्रू चैट बॉक्स, थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकेंगे और इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। So that is called real time conferencing and we call it synchronous virtual classroom. Then another mode is that like we develop our video। हम अभी जैसे मैं इस लेक्चर को पढ़ा रही हूँ, अभी आप मेरे साथ रियल टाइम जुड़े हो और एज प्रीति मैडम टोल्ड यू शी विल शेयर द लिंक ऑफ दिस विद दिस वीडियो लेक्चर, so you can access that video lecture later on also। तो जो जब आप फेस टू फेस रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इसको हम वर्चुअल सिंक्रोनस क्लासरूम बोलेंगे, और जब आप इसको बाद में एक्सेस करेंगे, कोई और इस लिंक को यूज करेगा, तो इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों मोड के हमने वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किए थे। एंड यू विल फाइंड दैट कि रिजल्ट किसके अच्छे आए, क्योंकि एक रिसर्च स्टडी थी, इसमें हमने तीनों तरीके की चीजों को कंपेयर किया था। One is virtual asynchronous classroom. Second module was some students were given the link for the synchronous mode। स्टूडेंट उसी समय रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वो वेबसाइट पर जुड़ते थे। कुछ स्टूडेंट को केवल लिंक दी जाती थी, लेटर ऑन वो अपनी सुविधा के हिसाब से उस वेबसाइट को एक्सेस करते थे। और तीसरा ग्रुप था जिनको इन दोनों तरीके के ना करके टीचर ने डायरेक्ट क्लासरूम में पढ़ाया था। तो द रिजल्ट, एवरीबडी वाज सरप्राइज टू सी द रिजल्ट। जब मैंने सारे रिजल्ट देखे तो मैंने ये पाया कि जो एसिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम था इट वाज मच इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिंक्रोनस ऑन ट्रेडिशनल क्लासरूम। देन अ क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हुआ। द वेरी सिंपल रीजन इज दैट कि जो एसिंक्रोनस क्लासरूम था उसमें बच्चे उस लिंक को कभी भी एक्सेस करते थे, उसको 10 बार देखते थे, उसको समझते थे और ईमेल के थ्रू वो टीचर्स के साथ जुड़े हुए रहते थे, अपने क्वेश्चन भेजते थे और हम उनको जवाब देते थे। जबकि सिंक्रोनस क्या था, वो केवल उसी समय उस कंटेंट को पढ़ते थे, उसी समय डिस्कशन होता था और फिर उस कंटेंट के ऊपर हम उनको कुछ असाइनमेंट देते थे और वो उसको सॉल्व करते थे। जबकि ट्रेडिशनल में टीचर को क्लासरूम में प्रेजेंट होता था। इन सारे के रिजल्ट के बेसिस पर ये निकला कि एसिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम इज मच बेटर देन द सिंक्रोनस और ट्रेडिशनल क्लासरूम। So as a teacher, what is the use of this research? बहुत सीधा सा यूज है कि यदि हम इफेक्टिव तरीके से अपने कंटेंट को डेवलप कर पाए, हम अपने क्लासरूम के अंदर खुद इफेक्टिव वीडियोस बना पाए, हम अपने खुद के कंटेंट को स्टूडेंट के साथ शेयर कर पाए, तो वो ज्यादा प्रभावी तरीके से सीखते हैं बजाय कि हमसे फेस टू फेस या रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग की तुलना में। तो ये दोनों जो रिजल्ट से रिसर्च के बहुत इफेक्टिव है और आपको इससे समझ में आएगा। Then another which I already shared with you कि I worked on flipped classroom also। अब ये flipped classroom में हमने क्या किया, बहुत सीधी सी टेक्निक का मैंने यूज किया था, बिकॉज आई एम इन द टेक्नोलॉजी फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होने के कारण मैंने इसके ऊपर बहुत सारा छोटे छोटे रिसर्चेस करवाई और एक फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था ये 2012 का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। उस समय हमारे पास में अभी जैसे मैंने आपको बताया ये एडवांस टूल्स नहीं थे, तब हमारे सामने ब्लॉग्स हुआ करते थे। तो मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट के साथ किया था कि वी मेड 2 ग्रुप। एक ग्रुप ऐसा था, क्योंकि हम 9th क्लास के बच्चों के ऊपर हमने उनको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इस ब्लॉग को डेवलप किया था। और इसमें हमने क्या किया था, उस ब्लॉग के ऊपर हम हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते थे। और क्लास, तो हम ब्लॉग के ऊपर रोज कोई ना कोई पोस्ट डालते थे और बच्चों के साथ में वो बच्चे उस ब्लॉग को शेयर, बच्चों के साथ वो लिंक को शेयर करते थे, बच्चे उस ब्लॉग के थ्रू पढ़ते थे। और एक दूसरा ग्रुप था, उसको हम कोई ब्लॉग का शेयर लिंक नहीं दिया था। तो ट्रेडिशनल और फ्लिपिंग द क्लासरूम, जब वही बच्चे क्लास में आते थे जिनके साथ पास में ब्लॉग कर रहे थे, तो क्लासरूम क्या होती थी, डिस्कशन सेशन में होता था और एक सेकंड सेशन था उसके अंदर नॉर्मल क्लासरूम ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी। ये भी एक रिसर्च स्टडी है और ये जो है हमने
कंटेंट को डिसेमिनेट करने के लिए क्या किया, ब्लॉग का सहारा लिया था। और ये जो ब्लॉग बनाया गया था, उस ब्लॉग के थ्रू हम हर 2-3 दिन में अपना लर्निंग कंटेंट उनके साथ शेयर करते थे और क्लासरूम में वो शेयर्ड कंटेंट की डिस्कशन होती थी। देन ऑफ कोर्स रिजल्ट बेटर रहे फ्लिप्ड क्लासरूम के एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम के। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल which I already done and as a research. Then this जो ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम का जो ब्लॉग का एक ब्लॉग पोस्ट आपको edublog.org के ऊपर हमने डाला था और ये आज भी अवेलेबल है .funomics.edublogs.org। इसके अंदर हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट की जाती थी। और इस ब्लॉग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो बच्चे इसको एक्सेस करते थे, यदि उनको कोई चीज नहीं समझ में आती थी तो ब्लॉग में कमेंट के भी एक ऑप्शन होता है, तो बच्चे अपने कमेंट्स लिखते थे और कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जा सकता था। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका था। और ये फ्लिप्ड क्लासरूम में और फिर प्लस हम इन बच्चों से फेस टू फेस मोड में भी मिला करते थे। और उस समय जब बच्चों को एक तो ब्लॉग के ऊपर को पढ़ने के बाद जो उनकी डिफिकल्टी थी वो भी हम सॉल्व किया करते थे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम कि हाउ वी कैन डू दैट। देन इसी में हमने क्लास मेकर का यूज किया था और इस क्लास मेकर के थ्रू हम उनको टेस्ट भी दिए थे ब्लॉग के अंदर साथ में, क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा ब्लॉग पर नहीं होती थी। तो एक क्लास मेकर करके एक उस समय 2012 की मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि 2012 में क्लास मेकर करके एक नया नया टूल सामने आया था। तो उससे हम ऑनलाइन जो है टेस्ट लिया करते थे और क्लास मेकर के ऊपर हमने टेस्ट बना करके डाले थे और उस लिंक को हम ब्लॉग के ऊपर दिया करते थे। तो हर हफ्ते में बच्चों के टेस्ट भी होते थे। और ये एक स्क्रीनशॉट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विच वाज यूज फॉर आवर टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एक फ्लिप्ड क्लासरूम का एग्जाम्पल है जिसमें हमने दोनों तरीके से लिया। बच्चों को पहले से मटेरियल देकर के डिस्कशन फोरम को क्लासरूम को डिस्कशन सेशन में कन्वर्ट किया। दूसरा एक तरीका था कि बच्चों को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया। देन अनदर एग्जाम्पल जो कि हम आजकल यूज कर सकते हैं, अभी जैसे कोविड के समय में सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो हमारे सामने आई थी वो थी कि हम अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स को कैसे ऑनलाइन कराएं। तो उसके कई सारे तरीके टीचर्स ने निकाले, कुछ लोगों ने खुद ने लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करके उसका वीडियो निकाल करके बच्चों को दिया। बट उसका एक ये प्रॉब्लम था कि जो बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन थे वो नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा आइडिया डेवलप कर रही हूँ कि कोलोराडो यूनिवर्सिटी में एक pet.colorado.edu करके उनके पास में उन्होंने एक वर्चुअल लेबोरेटरी के सॉफ्टवेयर डेवलप करे हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप ये देखिएगा कि इसकी वैल्यूज बदलने के ऊपर स्ट्रिंग का एक्सपेरिमेंट है ये। और ये जैसे साउंड वाला जो वर्चुअल लेबोरेटरी का ही है कि आप इसमें मैन्युअली करें ऑसिलेशन की जो एक्सपेरिमेंट है। और ये यदि आप नेट के ऊपर pet.colorado. करके एक्सेस करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं आपके साथ में एक शेयर कर रही हूँ ये pet.colorado.edu। ये जो साइट है इसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। और यदि आप बच्चों के साथ में वो एक्सपेरिमेंट कीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हुए हैं। यदि ये एक्सपेरिमेंट आप उनके साथ में शेयर करेंगे अपने वीडियो के साथ ही, अपने खुद के वीडियो के साथ इन एक्सपेरिमेंट को लिंक करेंगे तो वर्चुअल लेबोरेटरी भी आजकल ऑप्शन अवेलेबल है जो कि पहले नहीं था। तो इस तरीके से हम ये ब्लेंडेड लर्निंग का एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि जिसमें हम लेबोरेटरी क्लासेस को भी ब्लेंडेड तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट रियल में भी बच्चों को करने पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी तेजी से वैल्यूज चेंज होती हुई इनको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन यदि ये ऑनलाइन वर्चुअल लेबोरेटरी के रूप में करते हैं तो उनके एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बेटर आते हैं। Now, learning laboratory techniques. For learning laboratory techniques and their application to specific experimental situation in online simulation that may cover at least portion, कुछ portion हम cover कर सकते हैं। Many online resources are available, including many of are free, like PET, interactive simulation for science and math, a collection of virtual labs in a variety of science discipline में physics simulation, a free collection of physics simulations with intangible parameters and real time animation उसमें available है। ACS virtual chemistry and simulation ये भी एक सॉफ्टवेयर है। A collection of chemistry simulations and virtual labs compiled by the American Chemical Society के द्वारा बनाया हुआ है ये। Then another एक virtual lab project at Stanford University, ऑनलाइन इंटरेक्टिव मीडिया क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय स्टैनफोर्ड, लार्जली फोकस्ड ऑन ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर है। ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो कि हम ब्लेंडेड लर्निंग मोड में पढ़ाते समय बच्चों के साथ में शेयर करके और यूज कर सकते हैं।
Similarly, then another videos and interactive activities provided by Harvard मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल के जिसमें है हार्वर्ड लैब एक्सचेंज, ये सारे के सारे लिंक्स जो हैं phone apps such as oscilloscope, speed gun. These allow students to interact with instrument or lab setup. Many textbooks also provide interactive lab-based resources. ये सारी चीजें आजकल नेट पर फ्रीली अवेलेबल हैं, केवल हमको उनके बारे में पता होना चाहिए. So I initially, just as I told you, you should be aware about the potential of this ICT कि क्या क्या हमारे सामने अवेलेबल है. यदि हम इतना ही हमको पता होगा तो हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और अपने स्टूडेंट के साथ इफेक्टिव तरीके से शेयर कर पाएंगे. देन अ क्वेश्चन कम्स कि यदि हम एक्सप्लोर करें तो हमारे स्टूडेंट खुद क्यों नहीं करें. तो एज आई टोल्ड यू दैट हमारा रोल क्या होगा, हमको एज ए गाइड, एज ए प्लेटफॉर्म सेटर के रूप में काम करना है. तो सिलेक्टिवली लिंक यदि हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, हम खुद उस लिंक को समझ पाएंगे और अच्छी वाली जो इफेक्टिव लिंक है वही हम शेयर करेंगे. तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो भी बचेगा और हमारी जो टीचिंग है वो गाइडेड लर्निंग होगी स्टूडेंट के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं. देन सेकंड ऑप्शन जो है, पहला की ट्रेंड था वो ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें मैंने आपके साथ अभी तक शेयर किया. देन सेकंड की ट्रेंड विच वी कैन यूज इज द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. नाउ व्हाट दिस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज, with ICTs, the vast amount of free content available on the internet, the students, young and old ones, can choose what and when to learn. The student is no longer bound by curricular programs and can learn in a formal or non-formal manner. There is a transformative element to self-directed learning. ये जो self-directed learning है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें it is an option for youth who find themselves trapped in the vicious circle of low skills, low productivity and low income. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं. इसमें हमको टीचर की डायरेक्ट प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. In case of blended learning, somewhere we have to give our instruction in a face-to-face mode or online synchronous mode. बट इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमको स्टूडेंट खुद अपनी स्पीड से सीख सकता है. तो ये जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एग्जाम्पल है, इसका सबसे बड़ा अफोर्डेबिलिटी होता है, इजीली एवरीवन कैन अफोर्ड एंड वी कैन कंट्रोल द कंटेंट आल्सो, क्योंकि हम खुद डेवलप करते हैं. तो ये जो है इसमें लोकेशन, एक्सेस टू इंटरनेट, मोटिवेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर. बच्चे खुद अपनी मोटिवेट होकर के खुद अपनी स्पीड से पढ़ते हैं. सेल्फ मॉनिटरिंग इज आल्सो इसेंशियल. बट जो नॉर्मली केस में अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग. देन इनोवेशन इज आल्सो पॉसिबल एंड इट इज आल्सो अफोर्डेबल. तो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन सेल्फ डायरेक्टेड सेशन आर एनॉर्मस. जैसे अभी स्वयं के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें क्या है, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट है. Prominent and emerging model of self-directed learning include open universities, open courseware, open educational resources and massive open online courses. बट जो हमारे यहाँ पर अभी जो स्वयं के पोर्टल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो बेसिकली उसमें हमको एक रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलते हैं, लेकिन एग्जाम हमको जा करके और टीचर के गाइडेड एग्जाम होती है. बट इस तरीके की जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, इसके अंदर एग्जाम भी खुद अपने आप ऑनलाइन होती है और स्टूडेंट खुद अपने रिस्पॉन्सेज को रिसीव करते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने डेवलप करवाया था 2012 इटसेल्फ. हमने एक ई लर्निंग मॉड्यूल डेवलप किया था और ये जो वेब पर एड्रेस के ऊपर दिया है www.learningscience.in, ये फिजिक्स की लेबोरेटरी, फिजिक्स 9th क्लास फिजिक्स पढ़ाने के लिए, ये भी एक पीएचडी लेवल का रिसर्च स्टडी है. और इसमें हमने क्या किया, उस समय एक डेडिकेटेड वेबसाइट डेवलप करवाई थी और इस वेबसाइट से बच्चे एक्सेस करते थे. इसी वेबसाइट के ऊपर हमने उनके टेस्ट भी होते थे. पढ़ने के बाद बच्चे खुद टेस्ट देते थे और टेस्ट देने के बाद उनके रिजल्ट उनके सामने होते थे. देयर इज अ ऑप्शन कि वो फिर से रीड करें और रीटेस्ट दें. तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने केवल सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मॉडल यूज किया था और उसमें बच्चों को केवल वेबसाइट की लिंक दी गई थी और वेबसाइट की लिंक से बच्चे, बट ये था कि उसके ऊपर मॉनिटरिंग कैसे हो. तो इसलिए हम उस वेबसाइट में इस तरीके का ऑप्शन था कि किस बच्चे ने कितने समय कितनी देर उस वेबसाइट को एक्सेस किया और कितनी बार उसने टेस्ट दिया, ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती थी. और इस मॉड्यूल को हमने कंपेयर किया था अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम से. तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले बच्चे थे उनको हमने दो, एक तो ट्रेडिशनल क्लासरूम जिनको इस वेबसाइट का एक्सेस नहीं था, एक दूसरा ये था स्टूडेंट, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे थे, कोई भी पेरेंट केवल वेबसाइट के थ्रू पढ़ाना पसंद नहीं करता है. तो ऑफ कोर्स
हमने बच्चों को दोनों तरीके के ऑप्शन थे कि हम ट्रेडिशनल तरीके से भी पढ़ाते थे और वो अपने नॉर्मल स्कूल में तो पढ़ते ही थे, बट एडिशनली दूसरे ग्रुप के बच्चों को ये वेबसाइट पे लिंक दी गई थी। तो ऑफकोर्स जो बच्चों की लिंक के साथ जो बच्चे पढ़ाई करते थे उनके रिजल्ट ज़्यादा बेटर थे एज कम्पेयर टू ओनली क्लासरूम टीचिंग के थ्रू। तो ये जो ऑप्शन है ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि हम इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैसे कर सकते हैं। देन अनदर सेल्फ डायरेक्टेड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, जिसमें हमने एक मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन डेवलप किया था, और वो भी ये भी एक्सपेरिमेंट है 2013 में डेवलप किया था ये मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इस इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन के साथ में हमने जो है सीआई कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन को कंपेयर किया था। दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट विच आई हैव डेवलप्ड, और ये उस जमाने का 2000 आई थिंक 2002 में मैंने से लगा करके 2005 के बीच में इस एक्सपेरिमेंट को डेवलप किया था। और ये आपके सामने डेवलप कंप्यूटर एडेड सीआई, जिसको हम आपने नाम भी सुना होगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल मैंने डेवलप किया था। और 2002 में सीबीएसई ने अपना सिलेबस बदला था, और उस डेवलप बदले हुए सिलेबस के ऊपर 2003 में मैंने ये मॉड्यूल डेवलप किया था। उस समय इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो दिस मॉड्यूल वॉज डेवलप्ड यूजिंग वीबी, विजुअल बेसिक को यूज करके बनाया गया था। फ्रंट एंड में वीबी था, बैक एंड के अंदर एक्सेस को यूज किया गया था। और इसमें एक आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन, मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी इसके एक्सपेरिमेंट को। तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज थी, स्टडी जोन था, स्टडी जोन में सारे चैप्टर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में, जैसे ही वो क्लिक करता था उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में सारे चैप्टर्स दिखाई देते थे। फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आते थे, टेस्ट सीरीज थी, असाइनमेंट भी थे और क्विजेस भी थी। फिर ये सारे रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास कलेक्ट होते थे। दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एंड इट इज स्टिल वर्किंग, ये आज भी काम कर रहा है। और ये सॉफ्टवेयर एक बहुत अच्छा, मैंने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मुझे 3 साल लगे थे। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसमें आपको ये दिखाई दे रही होगी कि एक टीचिंग फ्रेम है। ये टीचिंग फ्रेम के साथ साथ ये देखिए आप, ये आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें सारे चैप्टर्स ओपन होते थे, सब चैप्टर्स ओपन होते थे। एक लिटिल बिट ऑफ कंटेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कंटेंट दिखाई दे रहा है। इसको पढ़ने के बाद वो जैसे ही कंटिन्यू करता था एक स्क्रीन अपीयर होती थी, उसमें उस कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता था। यदि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया तो वो आगे की फ्रेम पर जाता था, और यदि गलत आंसर दिया तो उस आंसर को हम एनालाइज करते थे कि वेयर ही वाज रॉन्ग, और उस रॉन्ग के हिसाब से उसको सप्लीमेंट्री फ्रेम दी जाती थी। तो ये जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक एग्जांपल है जिसमें कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन डेवलप किया गया था। तो बहुत इन ब्रांचिंग टाइप ऑफ डेवलपमेंट था, जिसमें स्टूडेंट के रेस्पॉन्स को हिसाब से हमने सप्लीमेंट्री फ्रेम बनाई थी। So this is one of the example of self-directed learning that can be developed by anyone. This is another example. This experiment के कुछ screenshots हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि computer aided instruction was compared with the one experiment where this CI was compared with the traditional method. In the second case, this self-directed learning was compared with the blended learning. Blended learning मतलब मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन के साथ में इसको टीचर की प्रेजेंस में प्लस ये सीआई। तो आपको रिजल्ट वाज मच बेटर वेयर टीचर वाज प्रेजेंट इन द ब्लेंडेड लर्निंग मोड। नाउ थर्ड जो की ट्रेंड है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग का। नाउ व्हाट दिस कोलैबोरेटिव लर्निंग इज, so there is a vast opportunities for youth to engage in collaborative learning using ICT. Collaborative learning allows peers to share their knowledge, explore new areas of interest, and benefit from the cumulative knowledge of the group. Collaborative learning relies on positive interdependence with the group, individual accountability. ये जो collaborative learning है इसमें individual accountability for learning and teaching and clear process to lead, follow and resolve issues related to project goals and group dynamics. तो ये जो है collaborative learning like WhatsApp, आपने देखा होगा कि WhatsApp के ऊपर ग्रुप बना करके आप डाल सकते हैं। So certain sites are available which allow, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब क्या, यदि हम खुद पढ़ते हैं, अपने आप अकेले पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल एक्शन होता है, लो सोशल कैपिटल डेवलप होता है। यदि आप लोकल ग्रुप ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, पीयर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो लोकल पार्टिसिपेशन विथ हाई सोशल कैपिटल। बट यदि आप नेट के ऊपर ग्लोबल ग्रुप ऑफ लर्निंग प्रोसेस पीयर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो ग्लोबल पार्टिसिपेशन होता है, हाई सोशल कैपिटल डेवलप होती है।
So this collaborative learning is another key trend where the people learn collaboratively, making group, forming the group of people and they are लर्निंग। जैसे आपने देखा होगा कि यूजीसी के नेट के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने यूजीसी नेट का ग्रुप बना रखा है और वो सारे अपने कंटेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन फोरम करते हैं ऑनलाइन, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कुछ कोलैबोरेटिव लर्निंग को लेकर के सर्टेन यूनिवर्सिटीज हैव डेवलप्ड like peer to peer university is an online space for learning guided by values of openness, community and peer learning. So it offers MOOCs and open master programs for anyone who wishes to learn. ये जो है open MOOCs के courses हैं, ये courses are free and while P2PU does not confer credit, ये जो courses हैं इसमें कोई क्रेडिट कॉन्फर नहीं होते हैं, बट ये केवल उनको पास करने के ऊपर बेजेस मिलते हैं। So badges are granted based on how students work together to learn on a particular topic. तो ये जो है peer to peer यूनिवर्सिटी ये collaborative learning का बेस्ट एग्जांपल है। यू कैन एक्सेस दैट info.p2pu.org, इसके ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड आई एक्सेस दैट इट इज वंडरफुल way through which students learn by their own efforts with the collaboration. तो इसमें टीचर्स देन एक क्वेश्चन कम्स की कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर का क्या रोल है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम यदि छोटा सा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दें और उस व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अपन कुछ कंटेंट बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो वो खुद एडवांस कंटेंट हमको उस ग्रुप पे शेयर करते हुए आपने देखा होगा। आई एक्सपेरिमेंटेड दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड आई एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स आर फार अवे, दे एक्सप्लोर देयर ओन वे और बहुत सारा कंटेंट का शेयरिंग होता है। So this is one of the ways through which we can develop the collaborative learning modules. Then another example is the online repositories. So आजकल बहुत सारा with the explosion of content and choices, there is need क्योंकि collaborative learning is basically based on online repositories के ऊपर ही इसके ऊपर ज़्यादा rely करते हैं ये लोग। So with the explosion of content and choices, there is need to organize and present in a way that facilitate use and enhance accessibility. Those repositories are the creation of individual organizations plus broader initiatives representing both public and private sector के initiatives से ये online repositories बनी हुई हैं। और इन ऑनलाइन जैसे यदि आप देखेंगे तो ओपन लिब्रा इज ए रिपोजिटरी दैट ऑफर्स टेक्निकल बुक्स अंडर द फ्री लाइसेंस इन स्पेनिश, ये स्पेनिश भाषा में अवेलेबल है ये, और इसमें बहुत सारे इसके थाउजेंड्स यूजर्स हैं। दे विजिट डेली टू एक्सेस हंड्रेड्स ऑफ टाइटल्स because this Spanish repository is free to download and distribute to all. Similarly, Indian जो है National Digital Library of India is one of the initiative of government of National Mission on Literacy जो है उसका प्रोजेक्ट है ये, और इसकी लिंक है www.ndl दी हुई है वेबसाइट की लिंक। ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। इसके अंदर स्कूल से लेकर के और इंजीनियरिंग मेडिकल सभी की बुक्स अवेलेबल हैं ये, और ये इसमें जर्नल्स भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। ऑल दिस रिपोजिटरी ये फ्री है, इसको आप इजीली इसके अंदर से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और बट कॉपीराइट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका हमको ध्यान में रखना होता है, बट दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ India. So this is also one of the online library repository है, this is National Digital Library of India. Then another important, so this is about the collaborative learning. Then game is also one of the sort. हम कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे they spend hours of a day playing video games or online games. So playing has been shown to be an effective way for people to be introduced to technology and acquire new skills. रोल प्लेइंग हैज बीन यूज फॉर मेनी इयर्स। हम कई सालों से अपने एजुकेशन में रोल प्लेइंग का यूज कर रहे हैं और बच्चों को सोशलाइज करने में भी इसका यूज करता है। कैन वी कन्वर्ट अवर कंटेंट इनटू गेम? यस ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट अवर कंटेंट इनटू गेम फॉर्म, क्योंकि ये एक छोटा सा पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैव सीन दैट द चाइल्ड वाज नॉट ईटिंग, ही वाज प्लेइंग विद द वीडियो गेम। So this indicates that how much this video game attracts the young population. So a game content become digitalized, playing video games moved online resulted in an explosion of creativity, including for learning. Games attract massive audience with a diversity of background and give rise to multiple opportunity for expanding and scope the uses of game playing. ये जो वीडियो गेम्स है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आज से नहीं, आज से 10-15 साल पहले से भी ये गेम्स बहुत पॉपुलर हैं। और ये वीडियो गेम्स कैन बी कन्वर्ट अवर कंटेंट, तो कुछ साइट्स हैं जो कि हमारे कंटेंट को वीडियो गेम में कन्वर्ट करके देती हैं।
So Minecraft Education is Minecraft Edu is an initiative that combines games and learning for use in the classroom or other settings. The game accommodates multiplayer activities and offers tools to incorporate it into curricular content on a variety of subjects. There are fees associated with using these games in classroom. ये जरूर है कि ये Minecraft Edu is a private firm है जो कि हमारे कंटेंट को गेम में कन्वर्ट करके देती है. इसकी कुछ ये जो है एक और इंडियन कंपनी भी अभी एक नई रिसेंटली मुझे दिखी है, इन्फोकॉम स्टूडियो. They recently launched game development company with a focus on developing unique games as per requirement. It also develops learning content into games. ये कुछ साइड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये भी हमारे आइडियाज को गेम में कन्वर्ट करके हमको मैं कन्वर्ट करने की हेल्प करती हूँ. बट इसके अलावा मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ कि एज ए टीचर ऑल्सो वी कैन डेवलप दिस वीडियो गेम. देयर आर सो मेनी फ्री साइट्स आर अवेलेबल जिसमें आप अपने कंटेंट को वीडियो गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट उसके लिए थोड़ी सी हमारी ICT स्किल्स हमको इन्हांस करना होती है. तो यंग टीचर्स कैन डेवलप दिस बिकॉज दे कैन इजीली एक्सप्लोर दिस साइट एंड कन्वर्ट. तो मैं आपके साथ में how to convert a course into a game, because recently I am conducting a research on that, how we can develop a video to convert our basic content into a video game form. So game-based teaching relies on basic principle of games to design learning. Students are led on a path to discovery, presented with challenges that allow them to build on previous experiences and learn from mistakes to gain new knowledge. अब क्वेश्चन कम्स की वीडियो गेम में होता क्या है. तो बच्चों के सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करना होती है और वो चैलेंजिंग सिचुएशन को वो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ गेन करके वो चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करते हैं और न्यू नॉलेज एक्सप्लोर होता है. So with game-based learning, students are actively immersed in the curriculum, just like they would be in a game. इसी तरीके से ये किया जा सकता है. इसके जो फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है कि in order to create the game, teacher instructor to take a step back and think about the story behind the content of the book. हम नॉर्मली जो अपने कंटेंट है उसको एक स्टोरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, हम कैसे बच्चों के साथ में चैलेंजेस लाएं, ये थोड़ा सा थिंकिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. So we have to reframe thinking about content by thinking of the content story as a system. ये एक तरीका होता है. And by focusing on the following दो basic questions के ऊपर यदि आप फोकस करेंगे तो you can try a game, you can convert your content into a game. So how do different parts of curriculum content interact? सीधी सी बात है कि जो भी हमारा curriculum है हम उसको किस तरीके से स्टोरी में कन्वर्ट करें, उनके बीच में कैसे डायलॉग और इंटरेक्शन को डेवलप कराएं. देन what are the obstacles, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन सब के ऊपर यदि हम सोचेंगे तो we can easily convert our existing content into a game, a suitable game form. ये एक थोड़ा सा अभी रिसेंटली इसके ऊपर मैं आपके साथ में एक शेयर करूंगी कि जो बोस्टन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी. उसने अपने खुद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू जेनी नाम की एक टीचर है, उसने 5 जो कोर्स मटेरियल डेवलप करे हैं इसमें उनके सिंपल कंटेंट को उसने गेम फॉर्म में कन्वर्ट किया है बाय हर ओन एफर्ट. तो इस तरीके से छोटे छोटे एफर्ट्स हमको दिखाई देते हैं और वी इंडियंस आर वेरी मच अवेयर अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारतीय जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं दे आर इन द सिल्वर वैली और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. तो यदि हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्चे को या सॉफ्टवेयर सीखने वाले बच्चे को पकड़ करके उसके साथ अपने कंटेंट को गेम में डेवलप करने की कोशिश करें तो शायद वी विल बी एबल टू डेवलप अ गुड क्वालिटी वीडियो गेम यूजिंग अवर ओन learning content. So this is of the idea through which you can convert a course into a game. Then another important is social media. So social media क्या है, जैसे आप सभी लोग Facebook यूज कर रहे हैं, they are extensively used for learning as well. More and more people are using this for educational and professional purposes as well. Social network like blog, podcast, video sharing, YouTube, photo sharing like Flickr, Picasa, social bookmark, Evernote, प्रेजेंटेशन शेयरिंग, क्रेजी, स्लाइड शेयर, ये सब क्या है, ये सब डिस्कशन फोरम, ये सब thousands of other platforms are being used by individual and institutes for learning to enrich learning experiences. ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कैन वी यूज दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? ऑफ कोर्स, यदि हम छोटी सी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करें तो वी कैन कन्वर्ट दिस, क्योंकि हम अपने सोशल कनेक्ट के लिए क्या करें, वी आर यूजिंग दिस फेसबुक फॉर अवर सोशल कनेक्ट, वी आर यूजिंग दिस ट्विटर, we are using this LinkedIn, plus we are using YouTube. हम सभी लोगों ने YouTube के वीडियो देख करके कोविड के समय में बहुत सारी चीजें, खास करके किचन के जो रेसिपीज थी वो बहुत सारी सीखी.
So can we convert our content into this using this social media? Can we share our content using this social media? Of course, हम ऐसा कर सकते हैं. So this social media की बहुत सारी साइट्स हैं like Facebook, My Blog, Flickr, ये सब जो है we can use this. So this Twitter, Reddit, YouTube. So social networking for bridging the gap, physical boundaries of time and distance. We can use that. ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था. दिस वाज डन इन द 2015. तब हमने एक फेसबुक को यूज करके कंप्लीट 9th क्लास साइंस को पढ़ाया था. और आज भी ये फेसबुक पर अवेलेबल है. डॉक्टर राजश्री वैष्णव एंड वंदना स्टेज फॉर क्लास 9 सीबीएसई साइंस के नाम पर फेसबुक पर ये साइट है. और एक समय में इस फेसबुक के साथ में अराउंड 1500 चिल्ड्रन जुड़े हुए थे. और दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच वी हैव कंडक्टेड एट पीएचडी लेवल and the student was awarded her PhD also on this. तो इसमें हम बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि हमने केवल फेसबुक के ऊपर पूरा का पूरा साइट डेवलप की थी. डेली हम उसके ऊपर कंटेंट डालते थे फेसबुक के ऊपर और जो जुड़े हुए बच्चे थे वो फेसबुक के थ्रू उस कंटेंट को एक्सप्लोर करते थे. प्लस इसके साथ साथ हमने टेस्टिंग के लिए भी एक साइट यूज करी थी और लिंक डाल दी थी इस फेसबुक के ऊपर. तो वो टेस्ट भी हमारे कंडक्ट होते थे. So this was an experimental research which is conducted using Facebook. So this whole Facebook site was developed and it worked very nicely और बहुत अच्छे इसके results आए थे because the same thing here, the link of Facebook with the normal classroom teaching. इन दोनों का जब combination किया तो result was effective. Then social networking EduBlog, it was developed in 2012. ये blog आज भी मेरा working है, drrajshreevaishnav.edublog.org. इसको मैंने आज भी मैं इसको अपने पीजी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यूज करती हूँ. इसमें मेरे सारे रिसर्च के कंटेंट में उनके साथ पोस्ट करती हूँ और वी डिस्कवर विद दिस. सो दिस इज आल्सो यूज ऑफ ब्लॉग फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नो से भी या टेक से भी होने की जरूरत नहीं है. जो भी कंटेंट मुझे अच्छा मिलता है, जो भी मटेरियल मैं खुद डेवलप करती हूँ, वो सब इसके ऊपर पोस्ट करती हूँ और स्टूडेंट कैन एक्सेस एनी टाइम. Then another experiment which was conducted in 2011, that time also हमने एक learning.biology.edublog ये एक भवन की टीचर थी और उन्होंने एमएड मेरे अंडर में गाइडेंस में किया था. तो हमने एक एमएड के रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर एक बायोलॉजी का ब्लॉग डेवलप किया था बिकॉज शी वॉज भवन टीचर. तो अपने बच्चों के साथ उसने वो ब्लॉग की साइट को शेयर किया था एंड यू कैन see the responses from the student. These are the responses given by the student. क्योंकि इस ब्लॉग के अंदर जैसे मैंने आपको बोला बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि स्टूडेंट कैन पुट अ कमेंट. वो उन्होंने यदि कोई सबमिशन किया है तो वो भी डालते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं और टीचर कैन रेस्पॉन्ड using this blog only. So this is one of the sites which is an experiment we have conducted and this is my personal experience which I am sharing with you. How we can use EduBlog. It is all free. इसमें कुछ भी हमको एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं, केवल आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और you can start posting your content. Then another important, this is our recent mobile phone. So if you look at the studies, there are 5.2 billion mobile phone subscribers in developing countries. The ubiquity of mobile has turned them into a learning tool that can bring people living in remote areas closer to education. Taking advantage of the enormous uses of mobile phone, we can develop the full spectrum of knowledge and skills needed for workforce development, including basic education, literacy and numeracy, language learning, hard and soft skills, and entrepreneurship training also. तो मोबाइल फोन क्या है, अभी आपने देखा होगा कि हर एक घर में एटलीस्ट वन मोबाइल फोन तो सभी जगह अवेलेबल है और आजकल तो मल्टीमीडिया मोबाइल फोन अवेलेबल है. सो दैट मोबाइल कैन बी यूज फॉर टीचिंग एज ए टीचिंग लर्निंग टूल. हम लोगों ने सबने कोविड के समय में भी इसको यूज किया है. तो द मोबाइल फॉर एजुकेशन अलायंस comprised of 18 members. The countries are using mobile phone as a teaching device. The British Council, ITU, Mastercard Foundation, American Student, ये सब जो है dedicated. These all countries are developed. It is illustrative of the interest and dedication being directed to potential of mobile phones to vastly expand learning opportunities. डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मोबाइल एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है यदि हम इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करें. बिकॉज मोबाइल फोन इज इजीली एक्सेसिबल टू ऑल, हम इसको यूज कर सकते हैं. बट मोबाइल लर्निंग इज स्टिल इन इंटेंसिव विथ ऑनगोइंग रिसर्चेस. इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर expanding its impact is needed.
Some efforts are mobile only, while others integrating mobile into a broader educational experiences, following blended learning, self-directed learning and collaborative learning. इन तीनों मोड में हम मोबाइल को यूज कर सकते हैं. There are many programs that can be accessed using via using via basic feature phones also. So the proliferation of data-enabled phones, smartphones offers the greatest opportunity for mobile learning. In all cases, mobile device can help young students access information in their own pace. आजकल तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कुछ हमको जानना होता है तो हम तुरंत अपना मोबाइल यूज करते हैं. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, वी कैन यूज मोबाइल एज ए टीचिंग टूल. तो इन सम केसेस मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस टू हैव इट ट्रेवलिंग टू अर्बन सेंटर्स पे जाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. आप में से कई लोग आज शायद मोबाइल से मेरे इस लेक्चर को एक्सेस कर रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर वी कैन यूज दिस मोबाइल डिवाइस फॉर टीचिंग लर्निंग आल्सो. तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट आई एम शेयरिंग विद यू कि हाउ दिस मोबाइल डिवाइस, मोबाइल लर्निंग मटेरियल विच वाज डेवलप्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. 2010 का डेवलप किया हुआ ये मोबाइल लर्निंग मटेरियल है. उस समय 2010 में इतने एडवांस मोबाइल नहीं हुआ करते थे. रिसेंटली उस समय थोड़े से कुछ बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल थे. And luckily I got one student who was aware of she was from the engineering background, software engineer थी और उसने ये एक मोबाइल लर्निंग मटेरियल की साइट डेवलप की थी. बीएड के अंदर हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ाते हैं. तो इसमें इस मोबाइल डिवाइस के ऊपर हमने ऑल 3 लर्निंग थ्योरी, सारी जो बीएड की लर्निंग थ्योरी थी उसको डेवलप किया था. और इसमें वॉइस के साथ में डेवलप किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग करके. उसमें बहुत सारे वीडियो की लिंक भी दी. ये आपको स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड हाउ वी हैव कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया था क्योंकि उस समय कुछ बच्चों के पास ही मल्टीमीडिया मोबाइल हुआ करते थे. और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था इसको ब्लूटूथ के थ्रू बच्चों के मोबाइल डिवाइस में डाल दिया गया था. जिन बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल थे वो इस ब्लूटूथ के थ्रू उनके मोबाइल में डाला गया और वो इस मोबाइल सॉफ्टवेयर को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर पाते थे. जबकि कुछ बच्चे थे उनको ट्रेडिशनल टीचिंग के थ्रू पढ़ाया और बाकी जो बच्चे थे उनको ट्रेडिशनल प्लस दिस मोबाइल का यूज किया. ऑफ कोर्स रिजल्ट्स वर मच बेटर दोज हु वर यूजिंग ट्रेडिशनल विद द मोबाइल डिवाइसेस. तो ये जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था इट इज स्टिल वर्किंग. ये टैबलेट के ऊपर भी ओपन होता है, ये नॉर्मल आपके कंप्यूटर पे भी ओपन होता है, लैपटॉप पे भी ओपन होता है, प्लस मोबाइल के ऊपर भी इजिली इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द, इसमें वॉइस भी है. So this is one of the experiment which is conducted in 2010. आज 2022 में 11 साल के बाद ये बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय it required lot of efforts we did and I have developed this. So this is also one of the way through which we can use mobile. और आप भी ऐसे छोटे छोटे अपने वीडियो डेवलप करके मोबाइल के थ्रू शेयर कर सकते हैं. आप अपने खुद के मोबाइल के थ्रू, आजकल तो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है मोबाइल के अंदर, तो आप मोबाइल के थ्रू अपने वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको ग्रुप व्हाट्सएप का ग्रुप बना के ग्रुप पे डाल दीजिए या इंडिविजुअल आप उसको शेयरिंग कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर का यूज कर सकते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच वी कैन शेयर द कंटेंट विद आवर लर्नर्स. So the opportunities for learning and innovation with ICT is enormous. There is a lot of opportunity. However, despite significant investment, formal education system continues to face challenges in preparing youth with the ICT-related skills they need to succeed. Many factors account for this situation. बहुत सारी चीजें हैं, like lack of software and technical support is one of the reason. Absence of reliable electric supply is one of the reason. Inadequate student computer ratio is one of the reason. Then अभी तक जो हमारी ICT learning है restricted to studying basic computer literacy, but not for learning other subjects. Other subjects को भी यदि हम ICT के साथ include करेंगे, उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो of course it will be more effective. Importantly, the limited capacity of teachers to make more integrated use of ICT for teaching and learning is one of the reasons. So I say thanks to this HRDC they have started this type of courses to develop awareness and training, hands-on training to you all teachers. Then future opportunities, भविष्य में ICT से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. अभी तो डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारा ICT गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रीति मैडम और रेखा मैडम मैंने खुद ने स्वयं के कोर्सेज डेवलप किए हैं. तो एज ए टीचर if you are aware about all these potentials, you can develop a good quality of ICT based teaching learning modules also. Then in Asia, some countries have achieved a high degree of integration of ICT and education, while others are still working to provide digital access and basic literacy to large part of their population.
In regional survey, countries like Korea, Singapore, Japan, China, and Taiwan rank high for their achievement in ICT in education programs and support of science and technical innovations. In the rest of the region, a significant amount of work is still required. बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन somewhere there is a need to develop this ICT into integration. We have to miles to go with ICT. ये बहुत ज़रूरत है. Then M-learning lab in Korea, if you look at the example, so robot teacher in classroom also few, and they have mobile learning lab Korea में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग हमसे कई ahead हैं integration of ICT. So now they have developed a robot teacher who is teaching to the classroom. That situation आने में थोड़ा सा इंडिया को अभी टाइम लगेगा. Still यदि हम by the time we reach up to that level, at least we can develop our ICT skills in a better way. So can reach miles with ICT, unreached being reached using this ICT. So let us integrate this ICT to build safe and effective learning community. So now this forum is open for all of you. I think that I have shared with you some of the ideas through which you can integrate or you can make a effective software. क्योंकि अभी आने वाले पिछले अगले कई दिनों में आप ये सब चीजें सीखेंगे. आपको बहुत सारी चीजें प्रीति मैडम ने बहुत सारे लेक्चर्स अरेंज करवाए होंगे and you will learn how to use these ICT tools. But my lecture was based on how we can integrate these ICT tools into our teaching learning process. So thank you so much for patient hearing. The forum is open for you to, if you have any queries, please. Thank you so much, madam. If you have any question, please ask. किसी को कुछ पूछना है, you can ask in Hindi and English. प्रीति मॅडम मराठी असो बोलवार. Yes, yes. कोणाला मराठीत विचारायचं असेल तर मराठीत पण विचारू शकता. Any question? Please be interactive. Madam, I have one question. Yes, yes, please. So, blended learning and collaborative learning is there. In collaborative learning, which problems are arises mainly and how we will cover it? See, in case of collaborative learning, when the students share their content, generally collaborative learning is a type of group activities जिसमें हम स्टूडेंट के साथ में कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, देन देयर रिस्पॉन्सेज हमको मिलते हैं, प्लस वो खुद भी अपने कंटेंट शेयर करते हैं. तो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इन बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके हम बच्चे यदि हमसे कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो यदि हम आंसर कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दे देमसेल्व्स गिव आंसर टू ईच अदर. तो ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है बेसिकली ये ग्रुप की एक्टिविटी है जिसमें आप कोई एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दे दीजिए, उनका एक ग्रुप फॉर्म कर दीजिए एंड लेट देम टू एक्सप्लोर बाय देयर ओन एफर्ट. बिकॉज जब भी हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो द स्टूडेंट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लर्निंग विद द पीयर. तो बाकी जो ग्रुप है मेरे एमएड में मैं आपको बोल रही हूँ वी नेवर टीच वन बाय वन. हम जनरली कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ शेयर करते हैं एंड दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप एंड दे कंडक्ट. तो ये सारी एक्टिविटी आप करा सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा इतना जरूरत होती है कि आपको गाइडेंस आपका लगता है और आपकी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है कि व्हाट द ग्रुप इज डूइंग. उस मॉनिटरिंग के लिए आपको उस ग्रुप का पार्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कोई गलत फाइल एक दूसरे के साथ शेयर होती है, कभी कभी रॉन्ग कंटेंट डिसमिनेट हो पाता है, कभी कभी रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो बीइंग एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप यू कैन गिव देम अ प्रॉपर गाइडेंस. ये एक छोटी सी डिफिकल्टी जरूर होती है कि कभी कभी कोई गलत कॉन्सेप्ट एक बच्चे ने शेयर किया तो बाकी सब उसको फॉलो करने लगते हैं. तो उस समय टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आप आराम से कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज द चिल्ड्रन आर टू मैच्योर, दे शेयर देयर ओन कंटेंट, जो शायद प्रीति मैडम भी अभी यही करने वाली है. तो यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स. Thank you, madam. One basic question is also there related to this. As we have slow learner and fast learner, so can we make a group of slow learner, fast learner separately or combinedly, and how it will be make a group? Yes, sir. See, one thing is very clear that every classroom has normal probability curve. There you will find the high achievers, you will find mediocre and you will find low achievers. ये तीनों ग्रुप होते हैं. तो ऑफकोर्स जब आप ग्रुप बनाएंगे तो तीनों का मिक्स करके ही बनाएंगे, तभी आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे.
क्योंकि हो सकता है जो हायर अचीवर हैं वो कुछ अच्छे कंटेंट अच्छे कंटेंट एक्सप्लोर करेंगे और अपने साथ बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो ऑफकोर्स आपकी क्लासरूम के नॉर्मल जो सोशल बेस है उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेन यू फॉर्म ग्रुप। तो इसी के लिए एक हम लोग ग्रुप डायनामिक्स की एक टेक्निक यूज करते हैं, जो कि मैं जनरली अपनी क्लासेस में यूज करती हूँ। और उसमें हम क्या करते हैं, पूरे कंटेंट को क्लास में 2 या 3 ग्रुप बना करके उसमें डिवाइड कर देते हैं। देन व्हाट दे डिड, वो अपने अपने ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में वो कंटेंट आपस में एक दूसरे से समझते हैं, सीखते हैं, शेयरिंग करते हैं और वो बाकी बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने आईसीटी के साथ करवाया था। अदरवाइज मेरी फेस टू फेस क्लासेस में ग्रुप डायनामिक्स इज अ कॉमन फीचर इन अवर क्लासेस, सो दैट कैन बी डन। आप अपने कंटेंट को या अपने उन बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, ग्रुप बना लीजिए उनके, और उन ग्रुप में उनके साथ शेयर करिए एंड लेट यू विल गेट द वंडरफुल रिजल्ट फ्रॉम दिस। Okay, thank you very Thank much, you. madam. Thank you. Thank you. गुड आफ्टरनून मैडम। मेरा Yeah, क्वेश्चन था, हाँ, आपने बताया फ्लिप क्लासरूम के बारे में। yes, फ्लिप क्लासरूम, कैन यू इलॉबरेट मोर ऑन दिस? yes. ओके, तो सर फ्लिप्ड क्लासरूम बहुत सीधा सा है। इन्वर्टिंग योर ट्रेडिशनल क्लास इनटू फ्लिप्ड। फ्लिपिंग मतलब इन्वर्ट योर क्लास। हम नॉर्मली क्लास में क्या करते हैं सर, व्हाट यू डिड इन नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में क्या करते हैं सर? मैं क्वेश्चन टू यू आप पढ़ाते हैं? आप क्या पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं? कोई कंटेंट लेकर के जाते हैं, उस कंटेंट यस। को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उनको कोई असाइनमेंट या होमवर्क देते हैं। यदि आपको अपनी क्लास को फ्लिप करना है तो जो भी कंटेंट आप क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो कंटेंट बच्चों के साथ एक ग्रुप बना करके पहले शेयर कर दीजिए। जैसे यदि मुझे आज कोई थ्योरी पढ़ानी है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँ, उसकी या तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम उसकी पीडीएफ फाइल उनके साथ शेयर कर लें, या हम अपना एक छोटा वीडियो बना करके, आपको ऐसा लगता है कि आप उसको उनके साथ शेयर कर लीजिए। ये शेयर करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आप उनको बोलिए कि इस दिन आपकी फेस टू फेस क्लास होने वाली। जब आप फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे तो बच्चे वो जो कंटेंट आपने शेयर किया उसको पढ़ के आएंगे, और जब आपसे वो क्लास में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपसे उन्होंने जो कंटेंट पढ़ाया उसमें उनको जो चीज़ नहीं समझ में आई वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो एक्चुअल क्लासरूम है वो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिस्कशन फोरम वेयर स्टूडेंट डिस्कस द कॉन्सेप्ट विथ ईच अदर। हर एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करेंगे और उनको जहाँ भी डिफिकल्टी आई आप ऐसे गाइड करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दीजिए। You will get wonderful results, sir. I'm telling you, this flipped classroom is working like anything. Because कारण ऐसा है कि हम जनरली हमारा ये अजम्पशन है कि बच्चों को नहीं कुछ पता, हम ही उनको सब पढ़ाएं। इसके बदले यदि वो खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ने के बाद जो अपनी डिफिकल्टीज आपके साथ में लेकर के आते हैं, तब रियल टीचिंग होता है। क्योंकि जब हम खुद पढ़ाते हैं तो हमें नहीं पता कि कितने % बच्चों को सच में समझ में आया कि नहीं आया। बिकॉज 45 मिनट या 50 मिनट के समय में हम हर बच्चे को नहीं समझ पाते कि उसको समझा कि नहीं समझा। बट जब आप उनको कंटेंट पहले से दे देंगे और उनको केवल क्वेश्चन आंसर्स के रूप में इनसे पूछने को बोलेंगे, तो जो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको समझ में आएगा कि इसने कंटेंट को एक्सप्लोर किया है। कई बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं पूछते। उस कंडीशन में आप उनसे क्वेश्चन पूछिए तो एक बार जवाब देगा, एक बार नहीं पढ़ के आएगा, अगली क्लास में वो जरूर पढ़ के आएगा। तो दिस इज द वे कि जहाँ पर हम नॉर्मल क्लासेस को डिस्कशन फोरम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। So this is one of the way, and I am experimenting this flipped classroom from so many years. बहुत सालों से मैं इस पर काम कर रही हूँ and I am really getting good results. तो मैं इसीलिए इसको आपके साथ में शेयर किया कि आप इसको जरूर करके देखिए, you will find good results. ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, पूछिए। मेरा एक सवाल है, सोशल नेटवर्किंग एंड एड्यू ब्लॉग डेवलपमेंट, Yes. इसके लिए कोई स्पेशल कोर्सेज वगैरह है? सर आप which social networking site you are using? Social networking, this one, Facebook and all these things. Okay, you are using Facebook? No problem. You can just create one Facebook site and send the link to all your students जो जिनको आपको उसके साथ जोड़ना है, और उस फेसबुक के ऊपर आप
कुछ भी मत करिए। इनिशियल स्टेजेस में जो लर्निंग कंटेंट आपको नेट के ऊपर मिलता है उसको उस लर्निंग कंटेंट को उस फेसबुक में अपने बच्चों के साथ शेयर करते जाइए। आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद बच्चों को भी उसमें शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दीजिए। लिमिटेड एक्सेस रखिए। फेसबुक में बहुत सारे ऑप्शन है, इसको पब्लिक मत करिए, इसको केवल लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही ओपन करिए और वो स्टूडेंट उसके साथ ज्वाइन करवा लीजिए। फिर आप देखिएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी फेसबुक की साइट डेवलप हो जाएगी और स्टूडेंट भी कंटेंट जब शेयर करेंगे फिर आपको अपने फेसबुक के ऊपर रोज की पोस्टिंग में जरूर डालना है कि आपको क्या आप बताने वाले हैं। धीरे धीरे आपको यू विल डेवलप दैट। सिमिलरली ब्लॉग के लिए भी एजू ब्लॉग फ्री है, उसके ऊपर भी आप साइट डेवलप कर सकते हैं। एक गूगल के ऊपर ब्लॉग पोस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसके ऊपर भी आप अपने एक ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी स्लाइड में एक ब्लॉग का एड्रेस दिया था, यू कैन एक्सप्लोर दैट drrajshreevaishnav.edublogs.org। तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारा कंटेंट सिंपल टाइपिंग करके, सिंपल कहीं से कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल से पेस्ट हो जाता है, पीडीएफ फाइल शेयर हो जाती है, वीडियो की लिंक शेयर होती है। So that will be used as a sharing of the learning content and contacting with your students। और ब्लॉग का एड्रेस अपने बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, they will explore that। आपको पता भी पड़ेगा कि आपके ब्लॉग को किस किसने एक्सेस किया। So this is also way where we can use। In fact आपका जो ट्विटर है that also can be used as a teaching tool। प्लस फेसबुक के ऊपर एक फेसबुक मैसेंजर है, वो भी एक सर्विसेज है जिसके थ्रू आप उसको एजुकेशनल कंटेंट के साथ में द एफर्ट्स की जरूरत होती है और थोड़ा सा गाइडेड एफर्ट्स होना चाहिए तो आप आराम से इसको डेवलप कर पाएंगे। Yes. Okay. Anyone else? देखिए आज मैं मैडम के लेक्चर की लिंक शेयर करूंगी। अगर आपको कुछ उसमें डाउट्स है तो कल भी एक मैडम का सेशन है मॉर्निंग में ऑन डिफरेंट टॉपिक, बट आज के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो कल भी अपन डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लीट लेक्चर। प्रीति मैडम कल का जो मेरा, मैं अभी आज ही थोड़ा सा इनको बता दूं, कल जी का जो मेरा शेयरिंग होगा वो यही होगा कि हम इस सॉफ्टवेयर मैम मॉड्यूल आपकी डेवलप करना है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी। ओके अभी आ रहा है? यस यस नाउ इट अभी इज आ रहा है? यस। So what I will explore and I will discuss with the participants tomorrow कि हम इन सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करें। That will be my Yes, ma'am. Okay. So thank you so much, madam. On behalf of all the participants, I extend my thanks to Dr. Rajshree Vaishnav, madam. And ma'am, tomorrow also same timing at 11 o'clock. Yes, ma'am. Yeah, yes, ma'am. Yes. So thank you so much, ma'am. Friends, thank you all of you. Now you will take जो अपने instructions बच्चे हैं वो अभी कवर करते हैं कि दोनों lectures होने के बाद कवर करेंगे? Please let me know. अभी भी अभी कर दीजिए मैडम। अभी कर दूं? कर दीजिए मैडम। Because we are having half an hour for your lunch. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले लंच कर लीजिए so that we can start our next session on time at 1 o'clock। और जैसे ही वो 2:30 को खत्म होता है then we are having sufficient time। तो वो अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैडम। यस। तो अभी मैं मीटिंग ऑफ कर रही हूँ। मैं फिर से कौन बजे वगैरह मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। यू टेक योर लंच एंड ज्वाइन द सेशन। वी विल स्टार्ट द सेशन एट 1 o'clock। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।